everyone, welcome back to my classes. So guys, we were doing the chapter human reproduction for class 12th, right? And we have already covered male and female reproductive systems. So guys, today we'll be starting on with gametogenesis, and in gametogenesis we'll be talking about spermatogenesis. Now, the lecture based on spermatogenesis has already been taken up in the previous video, but in this video we will be studying more about spermatogenesis only. Like, it starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone, which is actually a hypothalamic hormone. So what happens during puberty? Okay, during puberty, the hypothalamus starts to release gonadotropin releasing hormone, that is GnRH. Okay, and this gonadotropin releasing hormone is acted upon by the pituitary over testes and ovum, where testes are stimulated to produce testosterone as well as undergo the process of spermatogenesis. तो जो भी ये processes होते हैं ये puberty पे होते हैं by one of the hypothalamic hormones influence, that is gonadotropin releasing hormone, जो specific हमारे sexual organs पे act करता है and helps it to secrete further hormone and the process. Okay. So the increased level of GnRH then acts on anterior pituitary. That is what they are writing. That जब GnRH का level बढ़ जाता है तो वो किस पे act करता है? Anterior pituitary पे, और stimulate करता है secretions of दो gonadotropins का release stimulate होता है. किसका? Luteinizing hormone का और follicular stimulating hormone का. That is LH and FSH. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone are stimulated by the anterior pituitary. Right? Now ये दोनों glands, दोनों hormones LH act करेगा हमारा Leydig cells पे. Leydig cells कौन से? जो seminiferous tubules के interstitial spaces पे present है, और साथ ही साथ क्या secrete करेंगे? Androgens. Androgens in turn stimulate करता है spermatogenesis का process and we are able to produce sperms. Right? FSH on the other hand Sertoli cells पे act करता है और stimulate करता है secretions of some factors जो help करेंगे in the process of spermiogenesis. Now let's recall कि spermiogenesis क्या था? जब हमारे जो spermatids थे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे इनटू स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, तो ये सब प्रोसेसेस को स्टिम्युलेट करने के लिए हमारे LH और FSH रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से. तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को इंस्टिगेट करना कि भाई आगे दो हार्मोन सिक्रीट कर, और वो दो हार्मोन्स फिर काम करते हैं हमारे स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मिएशन के प्रोसेस में. ठीक है जी. अब आगे अगर मैं देखूं आपके उसमें एनसीईआरटी में तो डिटेल्स दी हुई है स्पर्म के स्ट्रक्चर की. Now you can see about the structure of sperm, जिसमें आगे हेड होता है. This is the head full. Then we have a neck, ये हमारी neck होती है. Then we have this long middle piece और लंबी tail. ठीक है. A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. Plasma membrane जो है वो sperm की पूरी body को envelop करता है. Then sperm head के ऊपर एक haploid nucleus है, मतलब यहीं पे अंदर nucleus present होगा. ठीक है. और इस हेड के आसपास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्ट्रोजोम कहते हैं. ठीक है जी. एक्ट्रोजोम बेसिकली एंजाइम्स से भरा हुआ होता है जो हेल्प करता है ओवम की फर्टिलाइजेशन में. ठीक है. एक्ट्रोजोम के अंदर इतनी एंजाइम्स हैं कि जब ये स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट करता है तो वहां पे ये उसके लिए रास्ता साफ करता रहता है ओवम की चीजों को डिसॉल्व करते करते, और फाइनली जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ मीट कर जाता है. ठीक है. एक्ट्रोजोम एंजाइम से भरा हुआ है. मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो एट लास्ट खूब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी से मूवमेंट देखी जाती है टेल. देन स्पर्म मोटिलिटी बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, और उसी के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और टेल उसको मूव करने में हेल्प करती है. ठीक है. ह्यूमन ब्रेन ऑन एन एवरेज इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स.
ठीक है, ह्यूमन मेल इतना इजैकुलेट करता है ड्यूरिंग अ कोइटस और अ नॉर्मल फर्टिलिटी. एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% ऑफ देम शो विगरस मोटिलिटी. तो स्पर्म्स का ये मोटाइल होना, थोड़ा सा मूवमेंट में विगरस होना और पोटेंशियल और एबिलिटी टू फर्टिलाइज, ये बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है जी. स्पर्म्स आर देन रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वाया द एक्सेसरी डक्ट्स, जैसे वाया एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट. ठीक है. And all these secretions are then very essential for sperm maturation and motility. जो सेमिनल प्लाज्मा है उसमें दो चीजों का मिक्सचर है. किस किस चीज का? सेमिनल प्लाज्मा में we have the mixture of sperms along with that of the fluid released by some glands. जो prostate gland, seminal vesicle, bulbourethral gland, ये सब secretions जो sperms में ऐड करते हैं, तो ये टोटल कंबाइन होकर हमारा सीमेन बनाता है. ठीक है. जो सिक्रीशन वो ऐड कर रहे हैं उसे हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं. सो बेसिकली मैं लिखूं स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा इज इक्वल्स टू सीमेन. ओके. फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, ये सब मेंटेन किया जाता है बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर हार्मोन्स. ठीक है. तो यही पे हमारा एंड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पढ़ाऊंगी oogenesis के बारे में. टिल देन रिवाइज योर लेक्चर्स और सारा कुछ लर्न करके रखिए. थैंक यू सो मच.